میں کچھ باتیں حضور قاضی پاک صاحب کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ الحمدللہ حضرت ہم لوگ اسی ماحول میں رہ رہے ہیں اور ہمیں یہ ضرورت بھی ہے، اور اس مد نظر رکھتے ہوئے اس ماحول کے اعتبار سے میں نے کچھ سوالیہ جملے بھی میں نے سرکار کی برگاہ میں پیش کرنے کی میں نے جسارتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ دو بار سماعت کریں۔ میرا پہلا سوال ہے، کسی عالم کو حقیر عالم سمجھ کر یا ذاتی عالم سمجھ کر اس کی ابتدا میں نہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عالم کو حقیر سمجھ کر یا ذاتی عالم سمجھ کر کہ فلاں ذات کا ہے، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ یقینی طور پر شریعت اسلامیہ کے روح سے بالکل غلط سوچ ہے۔ ہاں، اگر اس عالم میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو وہ ایک میٹر الگ ہے، لیکن صرف عالم ہونے کی بنیاد پر کہ یہ عالم ہے تو کیا چیز ہے، تو عالم کو عالم ہونے کی حیثیت سے حقیر جاننا، بعض کتابوں میں آیا کہ کفر پر خاتمہ ہونے کی بھی خطرہ ہے، تو عالم کو صرف عالم ہونے کی حیثیت سے حقیر نہیں جانا جا سکتا، جاننے میں کفر پر موت ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ہاں، اگر وہ عالم صحیح عالم نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، کارنامے اچھے نہیں ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو پائے گی کیونکہ ایسی باتیں ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، تو وہ ایک میٹر الگ ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو تو آپ کو ہم کو بالکل عالم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ ٹائم ہو گیا، اس لیے چھوٹا جواب دے کے میں نکل رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر گاؤں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عورتیں زیادہ تر اپنی پریشانی کی وجہ سے مزارات پر حاضری دیا کرتی ہیں اور یہ بھی کہا کرتی ہیں کہ ہمارے جسموں پر سرکار ثابت کیا آتے ہیں اور سرکار نذیر ملت بھی تشریف لاتے ہیں، یا ان کے موکل جو ہے انہوں نے مجھے عطا کیا جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ اس کا جواب تو تقریباً میری گفتگو کو جن حضرات نے دھیان سے سنا ہوگا تو انہوں نے اس کا جواب بھی سمجھ لیا ہوگا۔ اولیاء کرام کسی کے بدن پر ہرگز نہیں آتے ہیں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے بدن پہ ثابت پاک آتے ہیں یا اور کوئی بزرگ آتے ہیں، وہ دعویٰ شیطانی دعویٰ ہے۔ اور پہلا حصہ کیا تھا؟ پریشانی کی وجہ سے۔ ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کا علاج آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر آپ کسی کی بیوی ہیں تو اپنے شوہر کو راضی کر لیجئے، اگر آپ کسی کی بیٹی ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اور اگر آپ بہت زیادہ بوڑھی ہیں تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر کے کونے کو عبادت خانہ بنا دیا ہے۔ آپ اسی جگہ پر اپنی عبادت کریں، اولیاء کرام کے وسیلے سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعا کریں اپنے گھر میں بیٹھے۔ پنجگانہ نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے جب یہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں تو بھلا جبکہ وہ گاؤں میں مسجد ہوتی ہے، زیادہ ٹائم لگنے والا نہیں ہوتا ہے، وہاں نہیں جا سکتی تو مزاروں پر کیسے جا سکتی ہیں؟ اس لیے مزاروں پر جا کر نہیں، اپنی پریشانی کا حل اپنے گھر میں رہ کر آپ کر سکتی ہیں۔ آپ کا خدا یقیناً آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ شوہردار ہے تو اپنے شوہر سے ساری پریشانی کہیے، آپ کا وہ ساتھ دے گا، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، مگر مزاروں پر جانے کی بالکل قطعی اجازت نہیں ہے۔ حضور تیسرا سوال یہ ہے کہ گاؤں میں آج کل اکثر لوگ غصے کی حالت میں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیے تو غصے کے عالم میں آ کر کے وہ یہ کہہ دیا کرتے کہ ہم نماز کو نہیں جانتے، تم ہی نماز پڑھو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اکثر و بیشتر ہمارے دیہاتوں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے
कि जब कड़ी धूप होती है तो हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं, बूढ़े से लेकर के जवान तक के, वो तमाम लोग कहते हैं कि धूप को गाली देते क्या तेज धूप है, और हवा भी तेज चलती है तो उसको भी लोग गाली दे दिया करते हैं, और तेज बारिश भी होती है तो लोग हवा पानी आग वगैरह इन तमाम चीज़ों को गाली दिया करते हैं। तो एक मुसलमान को अपनी जबान से इस तरीके से अल्फाज निकालना कैसा है? सवाल इनका ये हुआ कि कोई किसी को नमाज पढ़ने के लिए बोलता है तो वो कहता है मैं नमाज नहीं जानता, आप भी जन्नत में चले जाइए, आप भी नमाज पढ़िए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा जवाब देने वाले को फौरन तौबा कर लेना चाहिए। बगैर तौबा किए अल्लाह ताला उन्हें मौत नसीब न करे, बल्कि तौबा की तौफीक उनको मिले, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए। कहने वाले को भी मूड मजाज देख के कहना चाहिए, नमाज पढ़ने का हुक्म भी करने के लिए भी माहौल देखना चाहिए। जैसे कि मरने वाले के बारे में आया कि जब आदमी की मौत का वक्त करीब हो, जागने का वक्त हो, घर आ रही हो सांस, तो उस जगह पर कलमा पढ़ो नहीं कहना चाहिए, कलमा पढ़ो नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? जबकि वो कलमा पढ़ने की घड़ी है, वही टाइम में पढ़ लेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो फिर भी कहा गया कि उस टाइम में न कहो पढ़ने के लिए। क्यों? इसलिए कि परेशानी की हालत में है, कहीं उस परेशानी में उसके मुंह से निकल न जाए कि मैं नहीं पढ़ूंगा। जब ऐसा कह देगा तो उसकी मौत कुफ्र पर हो जाएगी। इसलिए वहां पर कलमा पढ़ो करना नहीं है, बल्कि वहां पे कलमा पढ़िए, बल्कि आप बुलंद आवाज से खुद पढ़िए। सुन लेगा अल्लाह तो फिर देगा तो पढ़ लेगा, मगर पढ़ने के लिए न कहिए, क्योंकि आपके कहने के बाद वो इनकार कर देगा तो इनकार पर उसकी मौत हो जाएगी। ये हिकमत है उसमें। तो इससे ये समझ में आया कि किसी को भी अच्छी बात कहने के लिए अच्छा माहौल भी होना चाहिए, अच्छा मूड मजाज भी होना चाहिए। आप कोई गुस्से की हालत में है, आप उसी जगह आप ये नमाज पढ़ने चलिए, तो आपका कहना भी उस मौके पर गलत है, तो मौके का लिहाज आपको भी रखना चाहिए। और बहरहाल जिस भी मौके पर कहने वाले ने कह दिया तो जवाब देने वाले को ये जवाब देना बिल्कुल नाजायज है। और खतरा इस बात का भी है कि कहीं इसका ये कहना इनकार की तरफ न चला जाएगा। वैसे हम लोग ताबीर कर देंगे कि नमाज को हम नहीं जानते हैं, मतलब ये कि नमाज के मसाइल हम नहीं जानते हैं, ताबीर करके बचा तो लेंगे, मगर खतरनाक बोली है, इस बोली से परहेज करें और तौबा करें। और ये और क्या था उसमें? जी बुजुर्ग, ये धूप और हवा पानी को, मौसम को गाली देना, हवा नहीं चल रही है तो गाली देना, ज्यादा चल रही है तो गाली देना, धूप ज्यादा निकल रहा है तो गाली देना, और कभी धूप न निकले तो फिर बादल को गाली देना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हवा को गाली न दो, क्योंकि हवा भी अल्लाह तबारक व तआला की एक कुदरत में से एक निशानी है। तो मौसम भी उसी का पैदा किया हुआ है। ये तो ऐसे हुआ कि आपको आपके दोस्त ने कोई तोहफा भेजा और वो तोहफा आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको ठुकरा दिया, तो दोस्त का दिल तो टूट जाएगा ना कि मेरी तरफ से दी हुई चीज को इसने पसंद नहीं किया। तो दोस्त की उससे दोस्ती का मतलब क्या हुआ? उसकी दी हुई चीज आपको पसंद आना चाहिए। उसकी हर बात से खुश रहे और कभी भी किसी चीज को गाली न दे, वरना इसमें भी खात्मा ईमान पर न होने का खतरा उसमें भी रहता है। इन सब जुमलों से बचा जाए। हुजूर, उस वालिदैन को मैदान महशर में क्या हाल होगा जिसने जीते जी अपनी औलाद को गैर मजहब, फिर अपनी बच्चियों की शादी गैर मजहब में कर दिया करते हैं, उन वालिदैन के लिए मैदान महशर में क्या हाल होगा? देखिए, हमेशा इस बात की जरूरत है कि वालिदैन, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस तरह खुद वो सही मजहब में है, अपनी औलाद को भी सही मजहब की तालीम दें, तरबियत करें, सही मजहब पर रहने की ताकीद करें, और कभी भी गैर अकीदा वाले के इदारे में नहीं भेजना चाहिए। और फिर अपनी बच्चों की शादी तो उनके यहाँ हरगिज नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें किताबों में फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने लिख दिया है, और तकरीबन ये तमाम मुसलमानों को मालूम भी है। बस ये है कि आपने मुझसे पूछ दिया ताकि मेरी जबान से निकल जाए, तो मेरी जबान से क्या, हमारे काफिर उलमाए किराम ने लिख दिया है, बड़े बड़े उलमाए किराम ने लिख दिया है, बद मजहब के यहाँ आपकी शादी नहीं हो सकती है।
अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। हुजूर, अक्सर गांव की मस्जिदों में लोग जो खुशी से मुसल्ला दिया करते हैं, और हमारे इमाम हो या मुअज्जिन साहब हो या गांव के कुछ लोग भी उस मुसल्ले को बिछाते हैं जिस पर खाना काबा हो, बैतुल मुक़द्दस वगैरह की तस्वीरें छपी हुई रहती हैं। और जब वो सवाल आ गया, वो मुसल्ला में आमतौर पर देखा, ये कंपनियों की बदमाशी है, ये कंपनियां बदमाशी करती हैं, वो जानबूझकर गुंबद खजरा की तस्वीर, खाने काबा की तस्वीर या और किसी मज़ार की तस्वीर डाल देती है ताकि मुसलमान उस पर चला करे। ये कंपनियों की बदमाशी है। तो मुसलमानों को चाहिए कि ऐसा जानमाज खरीदने न करें। जब खरीदेंगे तो कंपनी की बदमाशी निकल जाएगी। इस तरह के नमाज को बिछाने से परहेज करें, क्योंकि आप नमाज पढ़ने टाइम में उस पर सर डालते हैं, फिर उसके बाद आगे सर में जाना हो तो उसी को पाँव भी रखते हैं। जी जी, इसलिए इस तरह के नमाज का इस्तेमाल मस्जिद में छोड़ दें। माशाअल्लाह। हुजूर, अक्सर बेशतर हमारे इलाके में देखा ये जा रहा है कि लोग खुशी से ये मन्नत मांग लिया करते हैं कि या अल्लाह, हमारे घर में जो दिक्कत है या बेटा हुआ या वो वगैरह, तो हम अपने घरों में दाहा बनाएंगे। अल्लाह की पनाह, दाहा बनाने को बहुत बड़ी बात समझते हैं, और कई जगह ऐसे वाक़यात हुए। इस मुसलमान को मस्जिद में 5,000 रुपये देने की तौफीक नहीं होती, मदरसा में 1,000 रुपये देने की तौफीक नहीं होती, दाहा बनाने के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्चा करने की तौफीक हो जाती है। दाहा बनाने में कोई नेकी नहीं है, 1 पैसा की नेकी नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा अगर बनाइए इस नियत से कि इमाम हुसैन का रोज़ा ऐसा था, तो मुमकिन है अल्लाह ताला उस पर आपको अजर अता फरमाए, सवाब अता फरमाए। मगर जो लंबा सा बनाते हैं ना, ये बर्बाद करना है पैसे, और ये मन्नत भी जायज़ नहीं है। और फिर आया किताबों में कि अगर नाजायज़ बात की मन्नत मान लें तो उसको ना पूरा करना जरूरी है। पूरा करना नहीं, ना पूरा करना जरूरी है, यानी उसको पूरा मत करो। जो औरतें कहते हैं कि ख्वाब में इमाम हुसैन आके कहते हैं दाहा बनाओ, वो सरासर झूठ बोलती है, और वो शैतान की बोली बोलती है, वो सरासर झूठ बोलती है। कभी मुमकिन नहीं है कि इमाम हुसैन इसके बदन पे आए या इसके ख्वाब में आए कि तुम दाहा बनाओ, मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा इस तरह की मन्नतें जो खातून मान लेती हैं, वो अपने मन्नतों से बाज आए और इस तरह की मन्नत को बिल्कुल पूरी न करें। शौहर भी इस बात को अच्छी तरह से सुने। बहुत सारे लोगों ने दीन के नाम पर हमारे यहाँ पे वो गुमराही फैला दिया। घोड़ा बना देगा, उस पर एक बच्चा को बैठा देगा, कुरान हाथ में रख देगा। अब उसके नाम पे लोग अपने घर में फोटो रख लेते हैं कि कुरान वाला फोटो है। अरे भाई, कुरान के साथ साथ वो जानदार की तस्वीर भी तो घुसा दिया ना जी। तो ये सब चीज़ों से बचा कीजिए। हुजूर, मेरा आपने सवाल ये है कि औरतें मज़ार पर तो जाती ही रहती हैं, लेकिन कुछ मन्नतें ये भी मान लेती है कि जो हमारे घर में ये दिक्कतें आई तो बाबा की वजह से हमको परेशानियाँ दूर हो गई, तो हम उनके मज़ार पर जाकर के खस्सी चढ़ाते हैं। ये औरतें खस्सी चढ़ाने का, मुर्गा चढ़ाने का बयान हो चुका है। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा न करें, इसको शरीयत ने मना किया है। आप वहाँ बिल्कुल खस्सी चढ़ाने परवल स्थान पर लोग ले आते थे अगर मुस्लिम, तो मुझे लगता है अगले ज़माने में हमारे लोगों ने उन्हीं लोगों का देखा देखी मज़ारों पर ले जाना शुरू किया होगा, वरना ये किताबों से साबित नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ है। तो अपने मन से क्यों आपने पैदा कर लिया? इसलिए हाँ, बाबा की दुआ से अगर आपकी मुसीबत टली है तो आप इतना करें, तो बाबा के लिए आप 5, 10, 20, 25, 30 जितने गरीबों को आप खाना से खिला सकें आप खाना खिलाइए, सब आप बाबा के रूह को पहुँचाइए। या ये कि आप किसी दीनी इदारे में 5,000 रुपये दे दीजिए, सब आप बाबा के रूह को पहुँचा दीजिए। आपके मोहल्ले में कोई गरीब, लाचार, मजबूर, परेशान बेटी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, आप उसकी शादी में 5,000, 10,000 मदद कर दीजिए, सब आप बाबा को पहुँचा दीजिए। ये सारे तरीके हैं, मगर आप खस्सी लेके बाबा के मज़ार पर क्या करेंगी? बाबा को तो आपकी खस्सी की जरूरत नहीं है, आपकी तो चादर की भी बाबा को जरूरत नहीं है। उनको तो जन्नती चादर मिली है, जन्नती बिस्तर मिला हुआ है।
तो इस तरह से मन्नत मानना गलत है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को शऊर बख्शे और हिदायत अता फरमाए। और आप लोग भी अच्छी तरह से जो मसाइल बयान किए गए, मिलाद तो सब लोग करते हैं, सब लोग करते ही रहते हैं, मगर जिस मिलाद में मसले मसाइल बयान हो जाए वो ज्यादा कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आखिरी सवाल ये है कि ज़ैद को अपनी बीवी के साथ कुछ कहा कही हुई और ज़ैद ने गुस्से में आया और बोल दिया कि मैंने तुझे एक तलाक दिया। तो फिर बकर के पूछने पर ज़ैद ने कहा कि आपने क्या सही अपनी बीवी को क्लियर कर दिया है? तो ज़ैद ने जवाब में कहा कि हाँ, मैंने अपनी बीवी को क्लियर कर दिया है। तो ज़ैद को इस तरह से कहने से क्या कौन सी तलाक़ें वाक़ई होगी? ये तलाक का मसला आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब माजरत के साथ आप लोगों से कहूँगा कि 2-3 मिनट मुझे टाइम दें आप लोग। बार बार ये मौका भी नहीं मिलता है, तो इसमें ज़रा सा 2-4 मिनट टाइम दें आप लोग। देखिए, तलाक का मसला इतना बारीक है ना कि आप 200-400 उलमा को जमा करें तो उनमें भी आपको मिलेंगे 2-4 ही जो तलाक के मसले को सही से जानते होंगे, बाकी नहीं जानते हैं। इसमें इतना फर्क होता है, एक धागा का फर्क हो जाता है। एक लफ्ज आपके जबान से निकला, एक लफ्ज नहीं निकला, एक लफ्ज बढ़ गया, एक लफ्ज घट गया, तो सबके हुक्म अलग अलग हो जाते हैं। समझ गए? बहुत बारीक मसला है, इसलिए तलाक का जवाब सारे मुफ्तियान किराम भी नहीं देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपको तो पूरा नहीं समझा पाऊंगा अभी, लेकिन मोटी मोटी बात बता दूं कि तलाक, एक तलाक देने से आदमी बीवी निकाह से नहीं निकल जाती है मुकम्मल तौर पर, बल्कि वो कुछ दिनों तक निकाह में रहती है। सवाल में एक था, एक तलाक बाद में कहा के लिया, पहले था एक तलाक, बाद में कहा के लिया। तो एक तलाक देने से, और यही तरीका है कि एक तलाक ही देना चाहिए। एक तलाक देने में और 3 तलाक देने में फर्क क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। 3 तलाक दीजिएगा ना तो तुरंत के तुरंत बीवी निकाह से निकल जाएगी। और कैसे निकलेगी? ऐसे निकल जाएगी कि अगर आपको ठीक 10 मिनट के बाद होश आ गया और ख्याल आया कि नहीं यार गलत हमने कर दिया, रखना चाहिए मुझे, तो अब आप नहीं रख पाएंगे। अब उसके लिए लंबा प्रोसेस है, हलाला करना पड़ेगा। ये शौहर की सजा क्यों तुमने एक ही बार 3 तलाक कर दिया? तो लंबा प्रोसेस है, इद्दत गुजरे। शौहर और वो दूसरे से शादी करेगी, वो भी इद्दत गुजरेगी, उसके बाद तब वो शादी करेगी, फिर वो उसके साथ हम बिस्तरी करेगा, फिर उसके बाद वो तलाक देगा, फिर उसके तलाक के बाद फिर इद्दत गुजरेगी, तब जाकर के इतना लंबा चौड़ा सफर करने के बाद अब वहां से। तो 3 तलाक देने में ये मुसीबत है। और एक तलाक देने में फायदा क्या है? एक तलाक देने से ये होता है कि निकलती तो है बीवी निकाह से, मगर उसी वक्त नहीं निकल जाती। इसलिए शरीयत का तरीका यह है कि हालत तुहर में तलाक दो। जब हैज से फारिग हो जाए, माहवारी से फारिग हो जाए, तुहर की हालत में आ जाए तो तलाक दो। एक तलाक दे बस रुक जाओ, एक तलाक दे के रुक जाओ। अब उसके बाद 3 हैज गुजरने तक वो तेरी बीवी रहेगी। 3 हैज गुजरने तक भी अगर तुमने लौटाया नहीं तब वो तेरे निकाह से निकल जाएगी। एक तलाक के बाद जी, एक तलाक के बाद भी निकल जाएगी, मगर लंबा टाइम। 3 हैज पूरा गुजर जाने के बाद तब वो निकाह से निकल जाएगी। आप उससे आजाद, वो आपसे आजाद, रिश्ता खत्म। लेकिन फिर अगर आपके मन में आ जाए कि नहीं उसी के साथ निकाह करना है, तो अब आपको कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना है, दोबारा खाली निकाह कर लीजिए, नया निकाह कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, उसमें इज्जत भी नहीं गुजारनी है।
सीधा डायरेक्ट निकाह कर लीजिए, आपकी बीवी हो जाएगी। या बीचे में 3 हैज गुजरने की मुद्दत तो गुजर रही है, उसके बीचे में अगर आपको ख्याल आ गया कि नहीं मुझे रख लेना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए, तो खाली मुंह से कह दीजिए मैंने लौटा लिया, मैंने लौटा लिया, तो हो गई आपकी बीवी रह गई, वो तलाक खत्म, वो बीवी रह जाएगी, निकाह भी नहीं करना पड़ेगा। या मुंह से कह दीजिए तब भी, या शौहर बीवी एक दूसरे के साथ जिस तरह रहते सहते हैं उस तरह रहने सहने लगे तो भी वो रुजू हो जाता है, तो भी वो रुजू हो जाता है। तो शरीयत ने तो इतना आसान आपको बताया है, हम लोग हैं कि आसानी से शरीयत की दी हुई आसानी से फायदा नहीं उठाते हैं और जोश में आकर के कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो बहरहाल अब आते हैं सवाल की तरफ। ज़ैद ने का कहना है कि मैंने एक तलाक दिया, बाद में किसी ने पूछा क्या तुमने अपनी बीवी को क्लियर कर दिया, तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैंने क्लियर कर दिया। तो अब क्या हुक्म है, कौन सी तलाक पड़ी? सवाल ये है ना, ज़ैद जब इकरार है इस बात का कि हमने एक तलाक दिया, एक तलाक देने का वो इकरारी है, तो तलाक उसको एक ही पड़ेगी। और वो जो बोला कि हाँ क्लियर कर दिया, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि एक तलाक देने, उन्होंने समझा हो कि एक तलाक देने से क्लियर हो जाती है, एक तलाक देने से भी क्लियर हो जाती है, या 3 हैज गुजरते गुजरते क्लियर तो हो ही जाएगी ना, 3 हैज गुजरते गुजरते क्लियर हो ही जाती है। तो एक तलाक से भी क्लियर होती है और 3 तलाक से भी क्लियर होती है, मगर दोनों में फर्क वही है कि 3 तलाक से जो क्लियर होगी तो बगैर हलाला फिर दोबारा नहीं आ सकती है, लेकिन एक तलाक से जो क्लियर होगी तो बगैर हलाला आपके साथ में आ सकती है। तो इसमें एक तलाक साबित है। और अगर 3 हैज गुजरने से पहले ज़ैद ने अपने घर में बुला लिया होगा, 3 हैज गुजरने से पहले अपने घर में बुला लिया होगा, तो वो भी एक तरह से रुजू है कि मैंने गोया कि अपने तलाक को लौटा लिया, या जिस तरह शौहर बीवी रहते हैं उस तरह रह गए होंगे तो भी वो तलाक खत्म हो जाएगी और वो उसके निकाह में रह जाएगी। बहरहाल 3 तलाक साबित नहीं है, एक ही तलाक उसमें साबित है।